2015 اردو پیپر 2 2015 کا WB سیٹ 2015 کا پرچہ نمبر 2 اس ویڈیو میں حل کیا جا رہا ہے۔ افسانہ ببل کس کی تصنیف ہے؟ جواب راجندر سنگھ بیدی کی تصنیف ہے۔ راجندر سنگھ بیدی کا یہ افسانہ ببل اپنے دکھ مجھے دے دو نامی افسانوی مجموعے میں شامل ہے، جو کہ 1965 عیسوی میں شائع ہوئی۔ اس مجموعہ میں 9 افسانے شامل ہیں: جوگیا، لاجونتی، لمبی لڑکی، یوکلپٹس، اپنے دکھ مجھے دے دو وغیرہ۔ عارفہ پر ہمیشہ روشن ہے کہ فن عاشقی عجب فن ہے۔ یہ شعر کس کا ہے؟ جواب یہ شعر ولی دکنی کا ہے۔ 1668 عیسوی میں اورنگ آباد میں پیدا ہوئے اور 1720 عیسوی میں احمد آباد میں ولی کا انتقال ہوا۔ اگلا سوال ہے آثار سنادید کے مصنف کون ہے؟ جواب سر سید احمد خان۔ آثار سنادید پہلی بار 1847 عیسوی میں سید الاخبار سے شائع ہوئی تھی۔ یہ 4 ابواب پر مشتمل ہے۔ اس میں دہلی کی تاریخی عمارتوں اور نامور لوگوں کا بیان ہے۔ اگلا سوال ہے رت آیا کلیاں کا ہوا راج، ہری ڈال سر پھولا کے تاج۔ اردو ادب کی تنقیدی تاریخ کے مصنف کا نام لکھیے۔ جواب احتشام حسین۔ 14 ابواب پر مشتمل یہ تصنیف ہے۔ سنِ اثرات 1983 ہے۔ اگلا سوال ہے مثنوی قدم رؤ پدم راؤ کے مصنف کا نام بتائیے۔ جواب فخر الدین نظامی۔ بہمنی دور کے پہلے شاعر فخر الدین نظامی بیدری کی مثنوی قدم رؤ پدم راؤ کا ذکر سب سے پہلے رسالہ معروف میں 1932 عیسوی میں نصر الدین ہاشمی نے کیا، اور اس مثنوی کا نام اس کے کرداروں کو مد نظر رکھتے ہوئے مثنوی قدم رؤ پدم راؤ تجویز کیا۔ جمیل جالوی نے ایک طویل مقدمے کے ساتھ 1973 عیسوی میں انجمن ترقی اردو پاکستان کراچی سے شائع کرایا تھا مثنوی قدم رؤ پدم راؤ کو۔ اگلا سوال ہے زنجیر بھلی قید بھلی موت بھی جوں تو، پنہک نہ کرے کس کو گرفتار کسی کا۔ یہ شعر کس کا ہے؟ جواب سراج اورنگ آبادی۔ دو بیتی کس صنف شاعری کا دوسرا نام ہے؟ جواب رباعی۔ 2 مصرعے والے ایک مکمل شعر کو بیت کہتے ہیں، جو کہ ہم وزن، ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو۔ ایک رباعی میں 2 شعر ہوتے ہیں، یعنی 2 بیت ہوتے ہیں، اس لیے اسے 2 بیتی بھی کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے اس رخسار دیکھ جیتا ہوں عارضی میری زندگانی ہے۔ اس شعر میں کون سی صنعت پائی جاتی ہے؟ جواب ایہام۔ یہ شعر ناجی شاکر کا ہے۔ سوال سید انور حسین کس شاعر کا نام ہے؟ جواب آرزو لکھنوی۔ آرزو لکھنوی کا نام سید انور حسین عرف منجو صاحب اور تخلص آرزو ہے۔ 1873 عیسوی میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات 1991 عیسوی میں ہوئی تھی۔ اگلا سوال ہے دیکھ زندہ سے پرے رنگے چمن جوش بہار، رقص کرنا ہے تو پھر پاؤں کی زنجیر نہ دیکھ۔ یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ جواب مجروح سلطان پوری۔ مجروح سلطان پوری کا اصل نام اسرار
حسن خان 1919 ईस्वी में सुल्तानपुर में पैदा हुए थे और 2000 ईस्वी में उनके इंतकाल मुंबई में हुआ। उनके शायरी का मजमुआ गज़ल है। गालिब अवार्ड और इकबाल सम्मान उन्हें हासिल है। अपने दुख मुझे दे दो किसका अफसाना है? जवाब राजेंद्र सिंह बैदी का। इसी नाम से यानी अपने दुख मुझे दे दो के नाम से उनका राजेंद्र सिंह बैदी का एक अफसानवी मजमुआ है जिसमें 9 अफसाने शामिल है जो कि 1965 ईस्वी में शाये हुआ था। फूलबन किस अदबी सिन्फ की नुमाइंदा तख्लीक है? जवाब मसनवी। फूलबन 1655 ईस्वी में लिखी गई मसनवी है। रानी केतकी की कहानी के मुसन्निफ का नाम क्या है? जवाब रानी केतकी की कहानी के मुसन्निफ का नाम इंशाअल्लाह का इंशा है। ये कहानी इंशा नवाब हुसैन अली ख़ान की फरमाइश पर अरबी और फ़ारसी अल्फाज के इस्तेमाल के बगैर 1803 ईस्वी में लिखी। मुंशी दयाशंकर नसीम के रसाले का नाम क्या है? जवाब ज़माना। सवाल उश्तर सोज़न किसकी तसनीफ़ है? जवाब काजी अब्दुल वदूद। उश्तर सोज़न काजी अब्दुल वदूद के तबसरों के मजमूए का नाम है। इसके अलावा अयारिस्तान भी काजी अब्दुल वदूद के तबसरों का मजमुआ है। काजी अब्दुल वदूद को उर्दू तहकीक का मौलिम सानी भी कहते हैं। सबरस का माखज़ हुस्नो दिल किसकी तसनीफ़ है? जवाब फ़ताही निशापुरी। दस्तूर उशाक, क़िस्सा हुस्नो दिल और शबिस्तान ख़याल ये तीनों मसनवियाँ फ़ताही निशापुरी की तसानीफ़ है। सर सैयद अहमद ख़ान और उनके नामवर रफ़क़ाए कार किताब के मुसन्निफ़ का नाम लिखिए। जवाब सैयद अब्दुल्ला। 7 बाब पर मुश्तमिल ये किताब है। सर सैयद अहमद ख़ान और उनके नामवर रफ़क़ाए कार, सर सैयद नवाब मोहसिन मुल्क, मौलवी चिराग अली, नज़ीर अहमद, शिबली हाली की अदबी खदमात और तसानीफ़ का ज़िक्र इस किताब में शामिल है। कौन सी मसनवी मिर्ज़ा शौक़ की है? जवाब बहार इश्क। बहार इश्क के अलावा ज़हर इश्क और फ़रेब इश्क शौक़ की मसनवियाँ हैं। रसाला सबरस कहाँ से निकला है? जवाब हैदराबाद। ये रसाला इदारे अदबियात उर्दू हैदराबाद से जारी की जाती है। अगला सवाल है करके खुदा के हवाला आईने पर पानी डाला। आईने पर पानी डाला के मानी क्या है? जवाब डी सफ़र से सही सलामत वापस आने के लिए एक रस्म की अदायगी। मीर तकी मीर की मसनवी जोशे इश्क से ये शेर माखूज़ है। आखिर करके खुदा के हवाला आईने पर पानी डाला। कायम के तज़किरे का नाम क्या है? जवाब मखज़ने नकात। कायम चांदपुरी सौदा के शागिर्द थे। फसाहत उनके कलाम को छू भी नहीं गई। बलागत नाम को नहीं, किसी चीज़ या किसी कैफियत या हालत की तस्वीर खींचने से वो बिल्कुल आजिज़ हैं। ये एतराज़ात मौज़ना अनीस व दबीर में किस शायर पर किए गए? जवाब दबीर। मौज़ना अनीस व दबीर 1907 ईस्वी में लिखी गई। इसमें मीर अनीस और दबीर का तकाबली मुताला पेश किया गया है। इसी किताब को तकाबली अदब की इब्तिदा मानी जाती है। मुसफ़ी ने 8 उर्दू फ़ारसी दीवान और 3 तज़किरे यादगार छोड़े हैं। मजालिस निसा किसकी तसनीफ़ है? जवाब हाली की तसनीफ़ है।
मजालिस निसा 1874 ईस्वी में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने 2 हिस्सों में मुश्तमिल ये तसनीफ़ लिखी। गालिब और बंगाल किसकी तसनीफ़ है? जवाब शांति रंजन भट्टाचार्य। शांति रंजन भट्टाचार्य ने 1977 ईस्वी में गालिब और बंगाल तसनीफ़ लिखी। सब कत्ल हो के तेरे मुकामिल से आए हैं, सही मिसरे से शेर मुकम्मल कीजिए। जवाब डी। हम लोग सुर्ख रूह हैं कि मंजिल से आए हैं। सवाल, उदास नस्ली के मुसन्निफ़ इस शेर का खालिक फैज़ अहमद फैज़ है। सवाल, उदास नस्ल के मुसन्निफ़ अब्दुल्ला हुसैन का साल वफ़ात क्या है? जवाब 2015। 2015 में इनकी वफ़ात हुई थी और 1931 ईस्वी में इनकी पैदाइश। बाघ, नादिर लोग, कैद, ये सारे उनके नावल के नाम हैं और उदास नस्ल भी उनके नावल के नाम है। अफ्रीका कमबैक उन्वान है। जवाब फैज़ अहमद फैज़। ये नज़्म 1955 ईस्वी में लिखी गई थी। ये नज़्म ख्वाजा मीर दर्द कहाँ और कब पैदा हुए थे? जवाब 1721 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए थे और उनका इंतकाल 1785 ईस्वी में हो गया। हज़रत मोहानी का पूरा नाम क्या था? जवाब सैयद फजलुल हसन। 1885 ईस्वी में पैदा हुए और उनकी वफ़ात 1903 ईस्वी। सितम का अजज़ नहीं, दिल ही काफिर था जिसने आह न की। ये किसका शेर है? जवाब फैज़ अहमद फैज़ का ये शेर है। ये शेर सुखनहाय वफ़ा से माखूज़ है। सुखनहाय वफ़ा में फ़ैज़ के कुल 8 शेरी मजमूए नक्श फरियादी, दस्ते सवा, जिंदानामा वगैरह शामिल है। कुतुब मुश्तरी क्या है? जवाब कुतुब मुश्तरी एक मसनवी है जो कि मुल्ला वजही ने 1909 ईस्वी में तहरीर की। इसमें मोहम्मद कुली कुतुब शाह और उसकी इश्किया दास्तान बयान है। सुर्ख सवेरा किस शायर का मजमूआ कलाम है? जवाब मखदूम। सुर्ख सवेरा 1941 ईस्वी में लिखा गया। गुलेतर ये 1961 ईस्वी में ये तसनीफ़ की गई। बसाते रक्स ये 1966 ईस्वी में शाये हुई। ये तीनों सुर्ख सवेरा, गुलेतर और बसाते रक्स ये तीनों मखदूम के तसानीफ़ है। मखदूम को इश्तराकियत का इमाम भी कहा जाता है। सुर्ख सवेरा, गुलेतर, बसाते रक्स ये तीनों मखदूम के मजमूआ कलाम है। फैज़ का पहला मजमूआ कलाम कौन सा है? जवाब नक्श फरियादी। नक्श रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? जवाब 4। सवाल, फ़िराक का पूरा नाम क्या है? जवाब रघुपति शाह है। फ़िराक 1896 ईस्वी में गोरखपुर में पैदा हुए और उनकी वफ़ात 1982 ईस्वी में दिल्ली में हुई। अगला सवाल है, मसनवी फुलबन का मुसन्निफ़ कौन है? जवाब इब्न नशाती। मसनवी फुलबन 1655 ईस्वी में लिखी गई। इसमें 1744 अशार है। 39 सिनातों पर यह मुश्तमिल मसनवी है। फ़िराक का पूरा नाम रघुपति शाह है। शम्सुल उलमा का खिताब किसे मिला? जवाब हाली को 1904 ईस्वी में मिला था। मनोहर मदमालती की दास्तान इश्क किस मसनवी में बयान है? जवाब गुलशन इश्क। मुल्कुल शुअरा नुसरती की तसनीफ़ गुलशन इश्क है जो 1657 ईस्वी में तहरीर की गई। अगला सवाल है, तलुका किस नावेलेट का किरदार है? जवाब एक चादर मैली सी। एक चादर मैली सी रसाला नकूश में 2 किस्तों में 1960 ईस्वी में शाये हुआ था। किताबी सूरत में ये मकतब जामिया दिल्ली से 1962 ईस्वी में शाये हुआ।
1965 میں اس ناول پر ساہتیہ اکیڈمی انعام ایوارڈ بھی راجندر سنگھ بیدی کو یعنی اس ناول کے مصنف کو ملا۔ غزل نیم وحشی صنف سخن ہے، یہ جملہ کس نقاد نے کہا تھا؟ جواب کلیم الدین احمد۔ کلیم الدین احمد کی تصانیف: اردو تنقید پر ایک نظر، عملی تنقید، اردو شاعری پر ایک نظر، سخن ہائے گفتنی، یہ سارے تصانیف تنقیدی تصانیف ہیں۔ تذکرہ نقاط الشعراء کا مصنف کون ہے؟ جواب میر تقی میر۔ میر نے اپنے تذکرے میں 104 شعراء کا مختصر حالات اور ان کے منتخبہ کلام کو پیش کیا ہے۔ سوال: قرۃ العین حیدر کا پہلا ناول کون سا ہے؟ جواب میرے بھی صنم خانے۔ یہ میرے بھی صنم خانے یہ 1949 میں لکھا گیا۔ اگلا سوال ہے، یادیں اور بنتے لمحات کس کے شعری مجموعہ ہے؟ جواب اختر الایمان۔ اختر الایمان یادیں 1961 میں اور بنت لمحات یہ 1969 میں لکھی گئی۔ اگلا سوال ہے، تنقیدی افکار کس کے مضامین ہے؟ جواب شمس الرحمن فاروقی۔ لفظ و معنی، شعر غیر شعر اور نثر، شعر شعور انگیز، تفہیم غالب، شعریات وغیرہ یہ شمس الرحمن فاروقی کے دیگر تصانیف ہیں۔